Hello students, today we are starting fourth chapter of class 10th mathematics, that is quadratic equations. So first let's understand the meaning of quadratic. So an algebraic expression whose degree is 2 is called quadratic. And an expression with two sides, left hand side and right hand side, and with an equal sign in between is called equations. So an equation with degree 2 is called a quadratic equation. An equation whose biggest power is 2. In this chapter, we will learn two concepts. First, how to form a quadratic equation from a word problem. And second, how to solve a quadratic equation using some methods. Here we will learn methods to solve quadratic equation. So there are three methods. First, factorization. Second, completion of a square. And third, Sridharacharya method or quadratic formula. So in first exercise, we will learn to form a quadratic equation from a given word problem. And we don't need to learn any new concept for this. But before that, let's check whether the given equations are quadratic or not. So in first part, it is given that x plus 1 whole square is equal to 2x minus 3, and we need to check whether it is a quadratic equation or not. So general form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equals to 0. This is the condition. a कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी. अगर ये टर्म गायब हो गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी. ओके, सो नाउ in first question we need to check whether the given equation is in standard form or not. ठीक है. So x plus 1 whole square is equals to 2x minus 3. Let's simplify it. So x plus 1 whole square is x square plus 2x plus 1. A plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. इधर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x माइनस 6. अब हम 2x को इधर ले आते हैं तो इधर प्लस 2x है, ये आके माइनस हो जाएगा. ये माइनस 6 को इधर ले आते हैं तो इधर माइनस 6 है, उधर आके प्लस 6 हो जाएगा. ये 2x कैंसिल और 6 प्लस 1 हो गया 7. सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और बीच में इक्वल का साइन है. सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है. अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो माइनस 6, माइनस 2 को माइनस x से इंटू करेंगे तो प्लस 2x. ये प्लस 2x उधर आके माइनस 2x हो गया, माइनस 6 उधर आके प्लस 6 हो गया. माइनस 2x इज माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो हाईएस्ट एक्सपोनेंस इज 2, therefore it is a quadratic equation. Now let's check third equation whether it is quadratic or not. तो यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले x को x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से करेंगे तो x, फिर माइनस 2 को x से करेंगे माइनस 2x, देन माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2. Similarly here x into x square, x into 3 3x, minus 1 into x minus x and minus 1 into 3 minus 3. ओके, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इधर जाके माइनस इसका साइन हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 2x हो गया माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स हो गया 2x, ये 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस 3 इधर जब आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा. ठीक है,
तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया और -2x माइनस एक्स हो गया -3x +3 -2 +1 हो गया. सो दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 आ रही है. दिस इज़ अ सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन फोर्थ पार्ट, a similar method, multiplication of binomials, monomial with binomial, shifting towards left side, x -6x -5x plus 5x उधर गया तो -5x -3. So 2x square -5x is -10x. So we can observe that highest exponent is 2. So this is a quadratic equation. Now in fifth part, -6x -x -7x प्लस 5x को उधर ले गए तो ये भी -5x +3 है. ये माइनस का 5 उधर आया तो +5. 2x स्क्वायर -10x स्क्वायर इज x स्क्वायर -7x -5x -12x +3 +5 +8. So we can observe that highest exponent is 2. Therefore it is a quadratic equation. Now in sixth part, x square plus 3x plus 1 and x minus 2 whole square is a square minus 2ab plus b square. तो बच्चों x स्क्वायर तो हो गया कैंसिल आउट, -4x उधर गया तो हो गया +4x, +4 उधर आया तो -4, 3x plus 4x 7x, -3 equals to 0. No, it is not a quadratic equation, it's a simple equation in one variable. In seventh part, on left side we have x plus 2 whole cube, which is a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square. On right side we have a monomial with a binomial. So 2x multiplied by x square is 2x cube, 2x multiplied by -1 is -2x. So we have x cube plus 2 cube is 8, 3 2 is 6, x square, 2 square is 4, 4 3 is 12, 12 into x, 12x प्लस 2x क्यूब को इधर लेके आएंगे तो -2x क्यूब, -2x इधर आएगा तो +2x, उधर बचा 0. या x क्यूब और -2x क्यूब लाइक टर्म है, इनको सॉल्व किया तो आया -x क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x is +14x and +8 equals to 0. So we can observe that highest exponent is 3. So this is not a quadratic equation, this is a cubic equation. Now in eighth part, we have x cube minus 4x square plus x plus 1. तो इसको तो एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है. और इधर हम लगाते हैं a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये प्लस एक्स क्यूब को उधर लेके आए, -2 क्यूब -8 उधर आके +8, 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12x उधर आके -12x. So x cube is cancelled out. -4x square plus 6x square is +2x square. ठीक है, -12x उधर और -x -13x +1 +8 +9 equals to 0. Highest exponent is 2. So this is a quadratic equation. Okay. तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा कि ये कैसे चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. ठीक है,
तो अब हम सेकंड क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना सीखेंगे। यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ओके, जैसा हमने लीनियर में किया था। तो बच्चों, लीनियर और क्वाड्रेटिक में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो वन वेरिएबल में है। ठीक है, एक ही वेरिएबल हुआ इसमें x, लेकिन जो लीनियर हमने पढ़ी थी वहाँ पे दो वेरिएबल थे x एंड y। ठीक है, तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर में क्या अप्रोच रहती थी और यहाँ पे क्या चेंज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हो सकता है पता नहीं पड़े कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या लीनियर का है, लेकिन सॉल्व हम कर सकते हैं उसको बाय एनी मेथड। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हमने लीनियर से ट्राई किया तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। पहली इन्फॉर्मेशन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 528। तो पहला काम तो सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना है। सेकंड इन्फॉर्मेशन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी रेक्टेंगल की लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमने लीनियर से अगर करते तो दो वेरिएबल मानने हैं। तो एक तो मानते लेंथ को, तो हम लेते हैं x और ब्रेथ को ले लेते हैं y। तो यहाँ तो इक्वेशन बन जाती है कि लेंथ यानी x इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रेथ 2 इंटू वाई प्लस 1। तो इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन बन गई थी। अब सेकंड स्टेटमेंट, एरिया इज़ 528 और एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी। L इंटू बी इज़ 528। ठीक है, अब लेंथ कितनी है हमारी x और ब्रेथ कितनी है y, तो ये क्या 528। ठीक है, तो लीनियर में तो हम ऐसे करते हैं, हालांकि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई है। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होगा। लेकिन क्वाड्रेटिक में अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं मानने हैं, एक ही वेरिएबल से काम चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसने कहा कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम ये नहीं करेंगे कि लेंथ x और ब्रेथ y, किसी एक को ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो देखो तो बच्चों, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x। तो उसने जो रिलेशन दिया लेंथ और ब्रेथ का, उसको हम लिखेंगे कि लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। अब यहाँ लेंथ को x और ब्रेथ को y तो मान नहीं सकते, लेंथ को x मान लिया है, तो अब ब्रेथ भी x की फॉर्म में निकालेंगे यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, तो लेंथ की जगह x लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू बी। ये 1 उधर लेके जाएंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू बी। फिर ये 2 उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। सो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बी। तो देखो लेंथ तो हो गई x और ब्रेथ हो गई x माइनस 1 अपॉन 2, दोनों x में आ गए ना। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल का कंसिडर करना है x, और जो वो दो रिलेशन देगा, ध्यान रखो हर क्वेश्चन में दो रिलेशन देगा। एक तो एरिया इज़ 528 पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन लेंथ इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो वो दो रिलेशन देगा, तो एक रिलेशन से तो तुम्हें वेरिएबल निकालने हैं। विल फाइंड द वेरिएबल्स यूजिंग वन रिलेशन। जैसे हमने लेंथ को x माना और ब्रेथ निकाल लिया ना, ठीक है, इसके लिए हमने ये रिलेशन यूज़ कर लिया। अब अगर इस रिलेशन से तुमने वेरिएबल बना लिए हैं तो इस दूसरे रिलेशन से तुम्हें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब दोनों आ गए हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे इस स्टेटमेंट से कि एरिया इज़ 528। ठीक है, तो एरिया इज़ 528, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 528 and we know that area of rectangle is given by L into B, so L into B is 528. Now length is x, length को हमने क्या माना बच्चों x, और breadth क्या आ गई हमारी x माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, फिर x को माइनस 1 से 2 किया तो माइनस x, ये 2 उधर जाके 528 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1056 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत इजी है, केवल
फर्स्ट रिलेशन से वेरिएबल निकाल लो, किसी भी एक वेरिएबल को एक्स मान के दूसरा वेरिएबल रिलेशन से निकाल लो। जैसे हमने लेंथ को एक्स मान के ब्रेथ जो है वो फाइंड कर ली लेंथ और ब्रेथ के गिवन रिलेशन से। उसके बाद व्हेन वी हैव टू वेरिएबल्स तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे क्या है और उस दूसरे स्टेटमेंट में इन वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उन वैल्यूज़ को रखने पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ द मेथड टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इन सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306 एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट टू इंटीजर्स, लेकिन हम यहाँ पर टू नहीं एक ही मानेंगे और मान लेंगे कि वो एक्स है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दो स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, एक ही स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वी नीड टू स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट तो वेरिएबल के लिए और दूसरा स्टेटमेंट इक्वेशन के लिए। लेकिन ध्यान से देखो तो जो उसका गिवन स्टेटमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें अपने आप दो इन्फॉर्मेशन दे दी है। पहली बात तो उसने बता दिया है कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। कॉन्जिक्यूटिव जो वर्ड है इसी में एक इन्फॉर्मेशन छुपी है कि दो कंटिन्यूस नंबर है, यानी अगर पहला एक्स है तो दूसरा x+1 होगा। ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होता है उनमें 1 का डिफरेंस होता है, पहला 3 तो दूसरा 4 होगा। कॉन्जिक्यूटिव यानी कंटिन्यूस नंबर। तो इतना ही काफ़ी था हमारे लिए दो वेरिएबल बनाने के लिए। जब उसने कहा टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो हम मान लेंगे कि वन इंटीजर इज़ एक्स, अदर इज़ x+1। ठीक है, और उसने कहा कि प्रोडक्ट इज़ 306। ठीक है, सो लेट द two consecutive integers are x and x+1। ठीक है, ये दो इंटीजर हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, कंटिन्यूस है, तो एक का डिफरेंस होगा, तो पहला x है तो दूसरा x+1 होगा। y तो ले नहीं सकते यहाँ पर। अब अगर आप प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो बस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको 306 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 306। प्रोडक्ट किसका, इन दोनों का, तो रख दो फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू 306। अब हम ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स, ये 306 इधर आया तो -306 इक्वल्स टू 0। बच्चों बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हम फ्लो में आएंगे और हमें ये इक्वेशंस इजीली बनानी आ जाएंगी। अभी हमें सैकड़ों क्वेश्चन करने हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में तो कहा था कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो हमने लिया x, नेक्स्ट लिया x+1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, x+2 एंड सो ऑन। लेकिन कभी वो कह सकता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, तो ध्यान रखना ऑड इंटीजर जो है उसकी जनरल फॉर्म होती है 2x+1। तो पहला इंटीजर हम ले सकते हैं 2x+1, दूसरा उससे 2 मोर होगा। ठीक है, तो वो उसको हम लेंगे 2x+3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ध्यान रखो ऑड में 2 का गैप होता है, जैसे 3 है तो 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। ये ऑड नंबर्स हैं तो इनमें 2 का गैप है। इसी तरह से अगर कहता है कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, तो पहला नंबर हम लेंगे 2x, दूसरा 2x+2 एंड सो ऑन। 2 का गैप लेना है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर है, और इवन की जो फॉर्म होती है जनरल वो होती है 2x। ठीक है, एक इवन नंबर को हम 2x की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से इवन में भी 2 का गैप होता है, पहला नंबर 2, दूसरा 4, तीसरा 6, तो 2 का गैप है, तो इसलिए पहला 2x लिया तो दूसरा 2x+2 और फिर 2x+4। इस तरह से कभी कहता है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, तो ध्यान रखो 8 के जो मल्टीपल होते हैं वो 8x की फॉर्म में होते हैं, और अगला नंबर जो होता है उससे 8 मोर होता है और फिर 8 मोर हो जाता है। जैसे 16 है तो फिर 24 होगा, फिर 32 होगा, तो 8 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि कभी वो वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ सकता है, तो हमें ये याद रखना है। नाउ इन थर्ड पार्ट, दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन एजेस ऑफ 2 पर्सनस। तो एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से उनको करना है। तो पहली इन्फॉर्मेशन है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। ठीक है, रोहन की जो मदर हैं वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर हैं, यानी बड़ी हैं, तो 26 प्लस हो जाएगा रोहन की एज में। रोहन्स मॉम इज़ 26 मोर दैन रोहन्स एज। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ
विल बी 360 यानी 3 साल बाद। तो जैसे एज वाले क्वेश्चन आते हैं 3 साल बाद, 3 साल पहले, ये वो कहने लग जाता है, ठीक है। बट दिस रिलेशन इज़ अबाउट प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसलिए हमें उसने पूछा भी है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो इसलिए हम इसमें मानते प्रेजेंट एज को हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है। रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है। तो अब हमारे पास दो रिलेशन है, लेकिन जो एक रिलेशन है वो 3 साल बाद का है। तो अब हमें ये सोचना है कि दो स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट से वेरिएबल निकालें और किस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम इजीली रोहन की मदर की एज भी निकाल सकते हैं। तो बेटर है हम इसी से इक्वेशन बनाएं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस तो 3 साल बाद का है, तो वो तो पहले हमें 3 साल बाद की एजेस निकालनी पड़ेगी। अभी तो हमारे पास प्रेजेंट एज है, तो इसलिए पहले मदर की प्रेजेंट एज निकाल देते हैं। तो रोहन की एज अगर एक्स है तो मदर तो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, तो इसलिए मदर की एज होगी 26 प्लस एक्स। तो ये मदर की एज आ गई और ये रोहन की एज आ गई, ठीक है, ये मदर की है। तो ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अगले रिलेशन की। तो उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो पहले तो 3 साल बाद की एजेस निकालते हैं। थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी वो होगी x+3, और उसकी जो मदर है उनकी एज होगी अभी कितनी है, 26 प्लस एक्स है। 3 साल बाद 3 और ऐड हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 29 प्लस एक्स। तो रोहन की एज तो आ गई x+3 और मदर की एज आ गई 29 प्लस एक्स। अब वो कह रहा है कि 3 साल बाद की एज आ गई, तो अब वो कह रहा है उनका प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। तो ये हमारा रिलेशन है जिससे हम इक्वेशन बनाएंगे कि प्रोडक्ट जो है दैट इज़ 360, यानी रोहन की एज 3 साल बाद वाली वो है x+3, मदर की एज 3 साल बाद वाली एज वो है 29 प्लस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट है 360, ठीक है। तो ये बन गई इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, सिंप्लीफाई करके 29x, फिर एक्स इंटू किया तो x², 3 को 29 से किया 87, फिर 3 को x इंटू किया 3x, और ये प्लस 360 इधर आ गया तो -360 इक्वल्स टू 0। सो x², 29 प्लस 3 32, -360 प्लस 87, तो इस तरह से बच्चों एक इक्वेशन बन गई, x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल हम सीख रहे हैं इक्वेशन फॉर्म करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दैम। नाउ इन फोर्थ पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्पीड पे बेस्ड। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इसमें यूनिफॉर्म स्पीड की बात करता है कि एक स्पीड है उसकी, उससे वो 480 किलोमीटर चलता है। और वो कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, या तो स्पीड बढ़ाएगा या स्पीड कम करेगा। तो यहाँ पे उसने स्पीड कम कर दी, तो स्पीड कम कर दी तो कह रहा है कि अब उसको 3 आवर मोर लगते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे चल रहा है। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम स्पीड को मानेंगे x। कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, जो यूजुअल स्पीड थी। यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि दो सिचुएशन है तो हम इस तरह से कंपेयर करते हैं। तो यूजुअल स्पीड तो x हो गई, तो पहली कंडीशन में डिस्टेंस कितना चलना था उसको, 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी थी, यूजुअल स्पीड वाज x किलोमीटर पर आवर। सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस कितना चलना था, सेम 480 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन सेकंड में उसकी स्पीड तो कम हो गई है, पहले स्पीड x थी, अब कितनी हो गई है, 8 लेस हो गई है। पहले x थी, अब हो गई x-8। अगर इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो ऐसा करने पर उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते टू कवर द सेम डिस्टेंस।
सो दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन टाइम टेकन इन टू डिफरेंट सिचुएशन। तो पहले हम टाइम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में जो टाइम लगेगा, तो बच्चों टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 480, स्पीड है x, तो टाइम लगा फर्स्ट सिचुएशन में 480 अपॉन x। अब सेकंड सिचुएशन में क्योंकि स्पीड कम हो गई है, इसलिए अब उसको टाइम लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8। तो T2 हो गया 480 अपॉन x माइनस 8। ये अब टाइम लग रहा है जब गाड़ी धीरे धीरे जा रही है। तो उसने कहा कि अब उसको सेकंड सिचुएशन में, क्योंकि गाड़ी धीरे जा रही है इसलिए 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो कह रहा है सेकंड सिचुएशन वाला टाइम फर्स्ट सिचुएशन वाले टाइम से 3 आवर मोर है। जब गाड़ी की स्पीड कम है तो वो वाला जो टाइम है यानी T2, वो गाड़ी की स्पीड जो पहले थी उस वाले टाइम से यानी T1 से 3 मोर है। तो T2 को हम लिखेंगे यहाँ पे Here we'll take LCM। ऊपर से 480 कॉमन लिया, इधर गया x माइनस 8 इधर, ठीक है। ब्रैकेट खोला, साइन चेंज, x कैंसिल, x मल्टीप्लाई बाय x 3x स्क्वायर, 8 3 या 24, 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इसको उधर ले गए तो माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन सिचुएशन। तो बच्चों यहाँ हमने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करना सीखा है, लेकिन अगर किसी को अभी कम समझ में आया हो तो आने वाले लेक्चर्स में उसको और क्लियर होगी सिचुएशंस, क्योंकि अभी हमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। तो हैव पेशेंस और इनको आप अच्छे से देखें, पॉज करके देखें। अगर किसी में प्रॉब्लम आई है तो उसको रिपीट करें, सब क्लियर हो जाएगा।